Hello. Hi, everybody. Am I audible? Can you guys hear me? Shreyansh, Bhavya, Mishra, Santosh. Yes, sir. Okay, guys, we're just waiting for 1 2 minutes. Okay, before other people join. Okay. So, guys, let's start. First of all, is the audio and the video proper, everybody? Bhavya, Shreyansh, Santosh, Aishi, is the audio and the video proper? Yes, sir. Okay, perfect. Guys, just as a reminder, please make sure that you guys are posting your mobile number and your name on the chat. ठीक है, बस वो एक छोटा काम कर दो. Please post your mobile number and your name in the chat box. Don't worry, it will not be sent to anybody. Okay, it is only reply to me only, not to others. We'll start in 2 minutes. बस एक ये छोटा सा काम कर दो. We have many students who join us from the Telegram group also directly, so please make sure you guys do it. Okay, Shreyansh has done it. Santosh has got it. Ayushi, Bhavya, we're waiting for you. Okay. Done, sir. Okay. Chalo. So guys, let's start. Everybody attention on the screen now. As you're aware of, day before yesterday, we conducted the demo for EIS. Okay. Now the today's demo is basically for your audit subject at the inter level. Ekjot has also joined. Ekjot, can you hear me? Just 1 second. I have not received your reply, beta. अब तक. Yeah, Ekjot, can you hear me? Okay. So guys, let's start now. Pay careful attention to this thing. When it comes to CA inter audit, okay. Now first pay attention to how exactly the paper is scheduled. Okay. This is your paper number 6. That is audit. And what exactly is the bifurcation of this paper? This paper is basically divided into two parts. The first part is objective, and the other part is descriptive. Okay. You have total 44 marks of objective and 56 marks of descriptive. ठीक है.
you have 44 marks of objective and 56 marks worth of descriptive. Out of the 44 marks, you have 30 marks worth of MCQ and 30 marks worth of MCQ, and you have 14 marks worth of correct and incorrect. And over here, you have 56 marks of descriptive, that is direct question and answers. Okay. Now, if you notice, guys, in this paper, the audit paper, 44 marks का objective आ रहा है and 56 marks का descriptive आ रहा है. ठीक है. So this is the only paper where you can see this kind of a pattern, that 44 marks is objective. So we need to be very, very sure with this part. Okay, objectives mein we have to try and make sure that we score as much as possible. Only then there's a very good chance of you being able to score a 60 plus in this exam. Is the paper pattern clear to everybody? Is the marks allocation clear? Any questions in the marks allocation between objective and descriptive? बोलो, any difference? Objective descriptive का ये समझ में आ गया? Is it clear? Okay, very good, perfect. Now, guys, let me ask you a few simple questions now. Okay, what exactly we understand that from so many people, right? आज बहुत सारे बच्चों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है. ठीक है. Now, why exactly is that? Okay, the main most important reason is the question interpretation. आज बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन इंटरप्रेट करने नहीं आते, एंड वो क्वेश्चन इंटरप्रेट करना क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. आज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन दैट केस तुम क्वेश्चन इंटरप्रेट बराबर से कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, ऑफ ऑडिट, जो हमें एकदम सिंपल सरल करके समझना है कि भाई ऑडिट क्या होता है. तो एकदम अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हमें समझना है व्हाट एग्जैक्टली इज ऑडिट, तो ऑडिट सिंपली मीन्स checking the financial statements. क्या बात होता है? It means checking the financial statements. Now, this is your very, very layman terms में understanding of the subject, right? Checking the financial statements. Now, we will build this up. Okay, we'll build this up. Now, let's take for example, आज क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, okay, I have Bhavya who is sitting here. ठीक है, Bhavya is there. Now, Bhavya, let's take for example, Bhavya, let me know in the comment section. Okay, आपकी कोई हॉबी है बेटा? डांसिंग, सिंगिंग? एनीबडी हु हैज अ हॉबी लाइक डांसिंग, सिंगिंग? किसी की भी हॉबी है? कुछ तो हॉबी होगी कि भाई सर मेरी ये पर्टिकुलर टाइप की हॉबी है. एनीबडी इन द क्लासरूम जिसका कुछ तो हॉबी है? बताओ, एकदम बिंदास होकर बता सकते हो कि व्हाट. ओके, अनन्या इज सेइंग दैट शी इज वेरी मच इनटू पब्लिक स्पीकिंग, राइट? शी लव्स पब्लिक स्पीकिंग. सो एनीबडी एल्स? संतोष इज सेइंग प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग. Okay, now let's take the example of Ananya. Okay, now Ananya is somebody who loves public speaking. Now, let's suppose that she started an institute, okay, where she is teaching people how to speak publicly. Okay, that is the thing that she started. Okay, जहाँ पे आज she wants to basically आयुषी बोल रही है सर नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं. हाँ, बाकी लोगों को भी नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं क्या? श्रेयांश, भव्य, संतोष, आयुषी saying there are some network issues. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम आयुषी बेटा, आप बाद में आपको रिवीजन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. या ओके, हाँ, ठीक है. सो गाइस, बेसिकली आज लेट्स सपोज करते हैं जहाँ पे अनन्या ने पब्लिक स्पीकिंग की अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है, शी स्टार्टेड हर ओन इंस्टीट्यूट. ओके, एंड मुझे बताओ, आज क्या शुरुआत में ही अनन्या के पास बहुत सारे बच्चे आने वाले क्या? बताओ, उनको एक एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ना. शी विल हैव टू डू एडवर्टाइजमेंट. इज दैट राइट? भव्य, श्रेयांश, संतोष, उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ना, बहुत सारी. अब मुझे बताओ, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी उनको यार, एक बहुत बड़ी अकेडमी स्टार्ट करनी पड़ेगी. उस सब में पैसा लगता है कि नहीं यार? वो बताओ, उस सब में पैसा लग गया कि नहीं? आज इतना बड़ा अकेडमी ओपन करने पड़ा ना, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी. इस सब के लिए मुझे बताओ, आज बेचारी छोटी अनन्या के पास सारे पैसे हैं क्या? डज शी हैव ऑल द मनी विथ हर टुडे? बोलो, नहीं है. बताओ ना, आज सारे. और मुझे बताओ, सबसे क्विक, सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है पैसे लाने का? देखो, आज अगर तुम स्टार्टअप वार्टअप से फंडिंग लाने जाओगे तो टाइम लग जाएगी. ठीक है, लेकिन तुम बैंक में जाके लोन ले सकते हो कि नहीं? बराबर. श्रेयांश एग्जैक्टली बोल रहा है, क्या ले सकते हो भाई? बैंक के लिए लोन ले सकते हो, बराबर ना? ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे. जाहिर सी बात है, तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, बट पैसा तो मिलेगा ना तुम्हें ऑन द स्पॉट. पैसा तो मिल जाएगा. बैंक मना करेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैडम आपको लोन नहीं देंगे, ऐसा बोलेगी कि बैंक. ठीक है,
तो मुझे बताओ बच्चों, ऐसे केस में जहाँ पे आज बेचारे हमारी छोटी अनन्या बैंक में जा रही है लोन लेने के लिए, तब मुझे बताओ बैंक वाले इनका चेहरा देख के इनको लोन दे देंगे कि भाई इनके बिजनेस को देखेंगे? बताओ, देखेंगे ना कि भाई इनका क्या बिजनेस चल रहा है, कितने बच्चों को ये सिखा रही है, बराबर, पब्लिक स्पीकिंग में कितने बच्चे आ रहे हैं, ये सब देखेगी कि नहीं देखेगी बैंक? क्या ऐसे आंख बंद करेगा, अरे वाह अनन्या मैडम आई है, जाकर लो लोन ले लो? ऐसा होगा क्या बच्चों, बताइए? ऐसा होगा कि भाई जहाँ पे आज बैंक पूरा का पूरा चेक करेगी, बराबर ना? इसको क्या चेकिंग को क्या करते हैं, ड्यू डिलीजेंस, क्या बोलते हैं इसको? ड्यू डिलीजेंस, बराबर ना? आज बैंक पूरा पूरा चेक करने वाले कि भाई अनन्या का बिजनेस कैसे चल रहा है। अब मुझे बताओ, अनन्या का बिजनेस उनको अगर शो करना है कि मेरे कितने सेल्स हुई हैं, कितनी फीस आई हैं, कितने मेरे खर्चे हुए हैं, कितना मेरा नेट प्रॉफिट, ये अनन्या कैसे दिखाए? क्या जबानी बताए, मुंह से बता दे बैंक को कि बैंक देखो देखो मेरी इतनी फीस है? मुझे बताओ, भरोसा रखेंगे क्या अनन्या की बातों पे? बताइए, बताओ, भरोसा रखेंगे क्या अनन्या की बातों पे? नहीं ना। उनको राइटिंग में देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा ना, किसी तो डॉक्यूमेंट में। वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बताओ? वो डॉक्यूमेंट होता क्या है? व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट? उस डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं? भव्य ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, भव्य बेटा ने। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? एग्जैक्टली उनको भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे कि नहीं यार? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करके वो लोन को, लोन के लेने के लिए जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लोन ऑफिसर हूँ, मैं कौन हूँ भाई? नहीं, मैं लोन ऑफिसर नहीं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो अपना श्रेयांश बेटा है, श्रेयांश, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि श्रेयांश जो है वो लोन ऑफिसर है, ठीक है। श्रेयांश बेटा, मैं आपका नाम रीनेम कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, हम जो रीनेमिंग, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। श्रेयांश लोन ऑफिसर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। श्रेयांश का नाम दिख रहा है ना अभी सबको? ओके, श्रेयांश इज द लोन ऑफिसर। ओके, अब मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने? अनन्या की ने और अनन्या की टीम ने कि किसी और ने? वो बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया बनाए किसने हैं? बोलो। अनन्या ने बनाए हैं, अनन्या के अकाउंट्स टीम ने बनाए हैं, सबने मिलके बनाए हैं, किसी बाहर वाले ने बनाए हैं, सेंटा क्लॉज ने बनाए हैं, किसने बनाए, बताइए? अनन्या के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए? संतोष बोल रहा है जी सर, अनन्या की अकाउंट्स टीम ने बनाए। अनन्या के अकाउंटेंट ने बनाए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, अनन्या की टीम ने बनाए, बराबर ना? अरे सब लोग मानते हैं कि नहीं? अरे ओ लोन ऑफिसर, लोन ऑफिसर, मानते हो कि नहीं कि अनन्या की अकाउंट्स टीम बनाएगी? बराबर है कि नहीं? जाहिर सी बात है, अनन्या की अकाउंट्स टीम बनाएगी, बराबर है। हाँ ना। मुझे बताओ, जब अनन्या की अकाउंट्स टीम ही है, मतलब अनन्या के एम्प्लॉयज, अनन्या ने बोला एंट्री मारो, एंट्री मारो, फीस आ गई है, एंट्री मारते रहो, फीस आई, फीस आई, फीस आई, ऐसे एंट्री मारते रहो, ठीक है। ऐसा अनन्या को बताया गया, ठीक है। अनन्या ने बोला अपनी टीम को कि भाई जाओ मारते रहो, ये चीज में बेसिकली कीप पोस्टिंग द एंट्रीज। मुझे बताओ, ऐसे इनका फीस का रेवेन्यू बढ़ जाएगा कि नहीं? बोले बच्चों, फीस का रेवेन्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा ना? एग्जाम्पल लेते हैं, इनके पूरे साल भर में इनकी फीस थी 5 लाख। कितनी फीस थी बच्चों? केवल केवल फीस थी 5 लाख रुपए, ठीक है। अब वो बढ़ के हो चुकी है 50 लाख। उन्होंने ऐसे एंट्री मारी 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 और 50 लाख हो गई, ठीक है। अब मुझे बताइए, जहाँ पे बेसिकली ये 50 लाख का रेवेन्यू दिख रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, ये रेवेन्यू किसको दिखाया जाएगा? ये रेवेन्यू कहने से श्रेयांश को दिखाया जाएगा, बराबर है, हमारे लोन ऑफिसर को, बराबर ना? ये रेवेन्यू लोन ऑफिसर को दिखाया जाएगा। और मुझे बताओ, लोन ऑफिसर इनके द्वारा, इनकी टीम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जो हैं, उन पे विश्वास रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बताओ, विश्वास रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलिए। बिल्कुल नहीं रखने वाले विश्वास? बोलो। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। राहुल, प्रिया, विंस, हाय बच्चों। आ, राहुल, प्रिया, विंस, राहुल, प्रिया, विंस और अजय, आप लोग अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट के लिए एक काम कर दो प्लीज। आप लोगों का मोबाइल नंबर और नाम प्लीज चैट पे लिख दो, ठीक है। मोबाइल नंबर और नाम प्लीज चैट पे लिख दो। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो दैट वी कैन स्पीक टू यू लेटर ऑन ऑल्सो। मोबाइल, डोंट वरी, वो नंबर किसी को जाने वाला नहीं है, वो हमारे पास ही आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर और नाम सिर्फ चैट पे लिख दीजिए प्लीज, ठीक है। राहुल गुप्ता, अजय, विंस और प्रिया, ठीक है। बाकी बच्चों का नंबर आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या समझ रहे थे? ठीक है बच्चों, प्लीज भेज दीजिए अभी, सो दैट वी कैन कंटिन्यू एज जस्ट 2 मंथ्स। ओके, अजय एंड राहुल का आ चुका है, अजय एंड राहुल का आ चुका नंबर।
बाकी बच्चे कौन बच गया? विंस इज लेफ्ट एंड प्रिया इज लेफ्ट। अजय वो भी होता है बेटा। ओके ओके। अच्छा विंस इज विक्रम झा। ओके ओके, हाँ ठीक है विक्रम बेटा, आपका नंबर डाल दो चलेगा। अभी यार आपने विंस नाम रखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा विक्रम झा? ओके। हाँ नंबर भेज दो बेटा विक्रम झा। ओके। हाँ विक्रम झा हो ना, तो मैं जानता हूँ आपको वैसे भी। ठीक है फिर भी भेज दो एक बार। ओके बच्चों शुरू करें, लेट्स कम बैक। हाँ बच्चों। हाँ तो ओ विंस इज सेइंग दैट सर मैंने लॉ की क्लासेस की थी आपसे, आई हैव पास ग्रुप वन। ओ वेरी गुड विक्रम, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। चलो बहुत बढ़िया। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों ना। अभी बेटा आ जाओ। विक्रम बेटा अभी ऑडिट ऑडिट पास कराता हूँ। ठीक है। हाँ अभी ग्रुप टू पास कराता हूँ। ठीक है ठीक है। अभी नाउ पे केयरफुल अटेंशन। हम क्या पढ़ रहे थे? अनन्या ने अपनी एकेडमी स्टार्ट की, अनन्या बेटा ने पब्लिक स्पीकिंग की, और उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। ठीक है। जहाँ पे वो खुद ही लिख रही हैं कि मेरे 50 लाख की फीस है, मेरे 50 लाख हमने कमाए हैं ये साल में। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके वो जा रही है लोन ऑफिसर के पास, और हमारा श्रेयांश बेटा जो है वो लोन ऑफिसर है। ठीक है। श्रेयांश बेटा जरा अनम्यूट करके बताओ, आप भरोसा रखोगे क्या अनन्या ने जो फाइनेंशियल में लिखा है उसके ऊपर? बताइए, आप भरोसा रखोगे अनन्या पे? नहीं सर। क्यों भाई, आज अनन्या ने क्या बिगाड़ा है? बेचारे ने इतना अकाउंट्स पढ़ के लिखा है फाइनेंशियल में, भरोसा क्यों नहीं रख रहे हो आप? सर अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं तो। वेरी गुड। क्या बोल रहा है ना श्रेयांश की अकाउंट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, बराबर ना? कुछ भी करके ना अकाउंट्स में कुछ भी, कहने से ऊपर नीचे एंट्रीज पास करके, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन शो करके कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यार। ऐसे केस में ना, अब पे केयरफुल अटेंशन। हम उन फाइनेंशियल्स पे भरोसा कैसे दिलाएं? अभी भरोसा दिलाने के लिए कौन आते हैं पिक्चर में? तुम मेरे नाम के आगे देख सकते हो, मैं सीए लिख रहा हूँ भाई, मैं अभी ये लिख रहा हूँ, ऑलरेडी हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा अजय बेटा, ठीक है ठीक है, तो विल कनेक्ट विथ यू लेटर ऑन बेटा। अजय बेटा कोई नहीं, आप सी फाउंडेशन में हो तो ठीक है, आप शायद गलती से ज्वाइन कर रहे हो, ये इंटर है बेटा, इंटर। ठीक है। ओके हाँ। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यार मेरे नाम के आगे तुम लोग देख रहे हो सीए लगा है, दो अक्षर, जो तुम पूरे जी जान लगा के ट्राई कर रहे हो मेरे आगे भी लग जाए, है कि नहीं? ठीक है। तो इन दैट केस बच्चों, आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, अब क्या होगा? अनन्या मेरे पास आएगी, बोलेगी सर मुझे बताइए, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है? हाँ। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप प्लीज यार मेरे फाइनेंशियल्स को चेक कर लो और ऑडिट कर लो। क्या कर लो? मेरे फाइनेंशियल को चेक करके ऑडिट कर लो बच्चों। और मैं उनके फाइनेंशियल को चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि इनके फाइनेंशियल बराबर से बने हैं कि नहीं बने। और उसके बाद मैं मेरी विशेष ओपिनियन दूंगा। क्या दूंगा? मेरा ओपिनियन। कैसे दूंगा ओपिनियन? क्या इधर उनको ये व्हाट्सएप डालूंगा कि हाँ अनन्या बेटा डन, अनन्या बेटा आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छे है, मैं व्हाट्सएप डालूंगा कि उनको, जो व्हाट्सएप श्रेयांश को दिखाएंगी? ना 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 ना। मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चों? एक ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है। और रिपोर्ट के अंदर मैं लिख दूंगा कि फाइनेंशियल बराबर बने हैं कि गलत बने हैं। ठीक है। और उस रिपोर्ट को लेके, वो रिपोर्ट और फाइनेंशियल अनन्या लेके श्रेयांश के पास जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद अब मुझे बताना कमेंट्स में सब लोग, अब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि ये फाइनेंशियल बराबर से बने हैं। अब मुझे बताइए कि श्रेयांश जो हमारे लोन ऑफिसर है वो विश्वास रखेंगे कि नहीं? बताओ कमेंट्स में बताइए जल्दी से। आई वांटेड एक्साइटमेंट इन द क्लास, कि जहाँ पे आप बताओ कि भाई अब श्रेयांश विश्वास करना ही पड़ेगा कि नहीं श्रेयांश को, कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने 4 साल जिंदगी के इतनी जबरदस्त पढ़ाई की है, पास हुआ है एग्जाम, आर्टिकलशिप ज्वाइन किए, इतने दर दर के भटके ठोकरे खाई हैं और पास हुआ है, और वो व्यक्ति एक इंस्टीट्यूट का मेंबर है, आज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है मेरे पास। ठीक है। और मैं वहां पे लिख रहा हूँ कि हाँ अनन्या के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर हैं। अब मुझे बताइए कि लोन ऑफिसर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बराबर है कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल नंबर टू मुझे बताओ। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेते हैं संतोष। ठीक है। ये संतोष बेचारा दिख रहा है तुम लोगों को क्लास में? संतोष, संतोष बेटा हाय बोलो सबको, संतोष बेटा अनम्यूट करके हाय बोलो, संतोष बेटा। हाँ सर।
वो इतना शर्मा के बोल रहा है बेटा। ठीक है। हाँ तो एग्जाम्पल लेते बच्चों, इतना डर डर के हाय बोल रहा था, ये पहली बात। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, संतोष का डीपी दिख रहा है साइकिल वाला, संतोष ने देखो साइकिल की डीपी रखी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, संतोष को ना एकदम, एग्जाम्पल लेते हैं, संतोष को ना गांव गांव में साइकिल बेचनी है। क्या करनी है बच्चों, गांव गांव में साइकिल बेचनी है। ठीक है, और इसने ऑलरेडी ना अपना साइकिल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत चालू किया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई अगर तुमने जाके गांव गांव में अगर तुमने तुम्हारी फैक्ट्री चालू करा हुई, तो हम तुम्हें क्या देंगे, 50% ग्रांट देंगे बच्चों। क्या देंगे, 50% ग्रांट। ग्रांट समझ में आता है, ग्रांट, गवर्नमेंट जो पैसे देती है ना, ग्रांट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम तुम्हें 50% ग्रांट देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जितना भी खर्चा होता है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, आज बेचारा संतोष साइकिल बनाता है और साइकिल की फैक्ट्री बनाने का खर्चा लगता है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो 1 करोड़ में से 50% गवर्नमेंट देगी, 50% संतोष लगाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब जब संतोष गवर्नमेंट के पास वो ग्रांट लेने जाएगा, तो संतोष अपना चेहरा लेके जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाएगा, बताइए। संतोष क्या लेके जाने वाला है, सिर्फ खुद को लेके जाएगा कि फाइनेंशियल्स को भी लेके जाएगा अपनी कंपनी के, बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाएगा ना भाई, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो लेके जाएगा, बराबर है। पर मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे लेके जाएगा, अभी कमेंट्स में लिख के बताना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाएगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बताओ। गवर्नमेंट का भरोसा किस पे है, गवर्नमेंट का भरोसा कौन से टाइप के फाइनेंशियल पे है, बताइए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है कि मामूली जो तो ये संतोष बना के लेके जा रहा है उस पे, बताओ। बराबर है, एब्सोल्युटली राइट, ऑडिटेड फाइनेंशियल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आज क्लास में तीन तीन बच्चियां बैठी है, बराबर ना, भव्या बेटी, बेटा बेटी है, अनन्या बेटी है और अमृता बेटी है। तीन लड़कियां दिख रही क्लास में, तीन लड़कियां, भव्या, अनन्या और अमृता। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर ली। क्या ओपन कर ली बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तीनों के तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर ली और तीनों ने सोचा कि जहाँ पे आज हम लोग साथ में मिलके कुछ काम करते हैं। ठीक है, साथ में तीनों ने दोस्त आ गए साथ में और तीनों ने साथ में मिलके बिजनेस चालू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। अभी ये ना, ये जो अनन्या थी ना, अनन्या का हो गया झगड़ा। ये जो भव्य और अमृता थी वो दोनों साथ में आ गई और अनन्या का हो गया झगड़ा। अनन्या बोल रही है मुझे मेरा पैसा दो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, नाउ पे केयरफुल अटेंशन, ना दो तीन लड़कियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अनन्या बोलती है मेरे को मेरा कैपिटल दो, मेरे को मेरा प्रॉफिट का शेयर दो, मैं निकलती हूँ। ठीक है, तुम दोनों तुम्हारा प्रॉफिट करते रहो। ठीक है, अब भव्य और अमृता ने ना कैलकुलेट करके अनन्या का नंबर निकाला। ठीक है, नंबर निकाला कि भाई अनन्या देखो, तुम्हारा कंपनी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 10 लाख रुपया बनता है। कितना बनता है, 10 लाख रुपया, तुम्हें 10 लाख रुपया लो, निकलो। मुझे बताओ, अनन्या क्या इन लोगों दोनों की बात मान जाएंगी, बताइए, क्या लगता है। विक्रम, राहुल, अनन्या ने तो सीधा सीधा लिख दिया नो सर, अनन्या ने खुद ही लिख दिया नो सर, मैं तो विश्वास ही नहीं करूंगी। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, विश्वास करेगी क्या अनन्या 10 लाख के नंबर पे, बोलो। ये इनके दोस्त है कि दुश्मन बैठे हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाली, बराबर ना। अनन्या क्या बोलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराओ, आकाश सर को बुलाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराओ। ठीक है, उसके बाद भले नंबर मेरा कम हो जाए, 9 लाख होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं चैन की नींद सो सकती हूँ कि भाई आज मेरे को इस नंबर पे भरोसा है। बराबर है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, बराबर है। ठीक है, कि जहाँ पे बेसिकली आज मुझे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा है। बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। मुझे बताओ, आज हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं कि नहीं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंट बन रहे हैं। मुझे बताइए, हमारा बिजनेस कभी भी बंद होने वाला है, बताओ, हमारा बिजनेस कभी बंद होगा, बोलो। वी आर इन द बिजनेस ऑफ गिविंग ट्रस्ट। हम क्या देते हैं बच्चों, हम पे लोग भरोसा करते, वाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है मतलब तो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोल दिया मतलब ये चीज बराबर है। ठीक है, तो बच्चों आज मुझे बताओ, हम तो भरोसा दिलाने वाले हैं, हम सबको भरोसा दिलाने वाले आदमी है। तो इन दैट केस, हर एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताइए, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना भाई, कंफर्म पड़ेगी, कंफर्म पड़ेगी। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि तुम सब मेरे वर्कर्स हो। तुम सब कौन हो भाई, संतोष, श्रेयांश, राहुल, अनन्या, भव्या, विक्रम, अमृता, तुम सब बच्चे कौन हो, मेरे वर्कर्स हो, वर्कर्स। ठीक है, मेरे फैक्ट्री में तुम लोग काम करते हो। ठीक है,
और ये जो राहुल बेटा ना, राहुल गुप्ता और ये विक्रम झा, ठीक है, ये दोनों बच्चों का एग्जाम्पल नहीं लिया था मैंने, उनका भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी राहुल गुप्ता और विक्रम झा तुम्हारे लीडर है, वो होते ना हमारी मांगे पूरी करो। अब क्या हुआ, कोविड के समय में मैंने तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाया, ठीक है, तो तुम लोग सब लोग चले गए धरने पे। धरना समझ में आता है, धरना स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। और राहुल गुप्ता और विक्रम झा तुम्हारे लीडर है, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास आए, मैं तो फैक्ट्री का मालिक हूँ, ठीक है। दोनों मेरे पास आए, दोनों ने मेरे को बोला सर हमारी पगार बढ़ाओ, कोविड चल रहा है, जो भी चल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी पगार बढ़ाओ, ठीक है। मुझे बताओ वैलिड वैलिड है कि नहीं उनका, उनका बोलना वैलिड है कि गलत है, बताइए। सब लोगों को चाहिए ना यार, थोड़ा तो पैसा बढ़ना चाहिए हर साल, है कि नहीं। अब मैं इनको बोल रहा हूँ, मैंने इनको बोला कि ये देखो भाई, ये देखो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख लो, भाई कितना लॉस चल रहा है, कोविड में लॉस चल रहा है। मुझे बताओ राहुल गुप्ता और विक्रम झा भरोसा करेंगे क्या मेरे बनाए हुए अकाउंट्स पे, बोलो। मेरे बनाए हुए अकाउंट्स पे भरोसा करने वाले हैं? कतई नहीं करने वाले। किस पे भरोसा करेंगे भाई, अगर मैं उनको बोलूंगा भाई ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट की इसके ऊपर रिपोर्ट है कि भाई ये फाइनेंशियल बराबर से बने हैं, तब मुझे बताओ भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप अभी समझ में आ गया ना भाई ऑडिट क्या होता है। ऑडिट क्या होता है भाई, यस, ऑडिट क्या होता है, फाइनेंशियल को चेक करना है और एक रिपोर्ट देनी है, ठीक है। अब अब बच्चों थोड़ा भी हटके समझते हैं, ठीक है। मुझे बताइए सब लोगों ने 10वीं की बोर्ड की एग्जाम दी थी कि नहीं दी थी, बताइए। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ ऑडिट की, कि कैसे जीवन भर के लिए तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन बैठ जाएगी। ओके, मुझे बताइए 10वीं की बोर्ड एग्जाम सबने दी थी और कितने कितने परसेंटेज आए थे, कमेंट्स में लिख के बताइए। किसी को नहीं दिखने वाले, मेरे को ही दिखने वाले, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, कितने आए थे 10वीं की बोर्ड एग्जाम में? ओह, एक जन बोल रहा है 86। ऐसे शर्माइए मत, सबको अच्छे नहीं आते, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओ माय गॉड, भाई राहुल गुप्ता 98%। आईसीएसई सीबीएसई वाले हो क्या? 98% राहुल भाई। अमृता इज सेइंग 95%। कौन से भाई आईसीएसई सीबीएसई वाले? एसएससी वो नॉर्मल वालों को, स्टेट बोर्ड वालों को तो मिलता नहीं है भाई इतना ज्यादा। हाँ देखा, देखा आईसीएसई, आईसीएसई, ठीक है, कोई नहीं, बट 98 इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ यस यस, अमृता महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, हाँ वही तो महाराष्ट्र में कहा। ओ, अमृता को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 95 भाई, ये तो सैल्यूट ठोकने वाली बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि what was the difference in your 10th standard board exam and your 10th standard prelim exam? डिफरेंस क्या था इन दोनों के बीच में, बताओ। किसी को अनम्यूट करके बोलना है बोल सकता है, किसी को अनम्यूट करके बातें करनी है तो कर सकता है, मैं ऐसे अकेले खुद से बात नहीं करता हूँ, पागल नहीं हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस किसी को अनम्यूट करके बात नहीं कर सकते, बताओ। 10वीं की जो बोर्ड की एग्जाम थी उसमें और प्रीलिम में फर्क क्या था, बताइए। सर क्लास बोर्ड के के आधा घंटे इंटरनली चेक हुए थे, टीचर्स ने करे थे। और मतलब जो प्रीलियम्स हुए थे, और सर बोर्ड्स में बोर्ड बोर्ड में ओके, एक मेरे सर को जो मैसेज आया है। प्रीलियम्स हुए थे वो इंटरनली टीचर्स ने चेक करे थे। ठीक है, बोर्ड की एग्जाम इंटर्न टीचर ने चेक की थी, बोर्ड की सर प्री एग्जाम। बोर्ड जो हुए थे प्रीलियम्स। अच्छा, प्री बोर्ड, ओके, यस सर। प्रीलिम्स, ओके। और बोर्ड में क्या हुआ था बेटा? सर वो मतलब बाहर से चेक हुए थे, अदर टीचर्स ने। बाहर से चेक हुए थे, वेरी गुड, यस। भव्य ने वैसा बोला है। ओके, पेपर करे प्रिपरेशन लीव मिली थी, कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक में कॉपी हो रही थी, एक में तो दूसरे में जोक चल रहे थे, ठीक है, ओके ओके। हाँ ना, भव्य ने जो आंसर दिया है, ठीक है ना, वो आंसर मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। दैट इज द मोस्ट एप्ट आंसर, ठीक है ना। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सब लोग पूरे, चाहे जितने बच्चे बैठे हैं सब लोगों को ये श्रीराम कॉलेज पता है, दिल्ली की श्रीराम कॉलेज सबको पता है, पता है ना, सबको पता है ना। ओ, फर्ज करते हैं क्लास में से दो बच्चे बैठे हैं, बराबर ना। आज अपनी भव्या बेटा बैठी है, अनन्या बैठी है, ठीक है। मुझे बताओ ना, पे अटेंशन ना, भव्या बेटा को प्री बोर्ड्स में, प्रीलिम में आए हैं 95%, ओके, प्री बोर्ड्स में, ठीक है। अनन्या को एग्जांपल लेते हैं, प्री बोर्ड्स में, प्रीलिम्स में आए हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इन द रेंज ऑफ सम 85%, ठीक है। बोर्ड्स में आए हैं, सॉरी, बोर्ड्स में आए 95 अनन्या को, और भव्य को प्री बोर्ड्स में 98 आए। मुझे बताना हु स्टैंड द चांस टू बेसिकली गेट इनटू श्रीराम कॉलेज, मतलब बताओ वो किस पे भरोसा रखेंगे, बताइए। श्रीराम कॉलेज कौन से रिजल्ट पे ज्यादा भरोसा रखेंगे,
अनन्या के 95 भरोसा रखेंगे कि भव्य के प्री बोर्ड्स पे 98 पे भरोसा रखेंगे? बताओ। प्रीलिम एग्जाम के मार्क्स को प्रीलिम में ज्यादा स्कोर किया भव्य ने, याद रखना। किसके चांसेस ज्यादा है जाने के, कॉलेज में एंट्री मिलने के चांसेस किसके ज्यादा है? बराबर है? सबको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया था सबको? ठीक है। वेरी गुड। आज कहना है इसे बच्चों, अनन्या के चांसेस ज्यादा है। मुझे बताओ, श्री राम कॉलेज भव्या के प्री बोर्ड्स पे मार्क्स पे विश्वास रखेगा कि नहीं रखेगा? बताओ। रखने वाला है प्री बोर्ड मार्क्स पे रिजल्ट रिजल्ट पे विश्वास? बिल्कुल नहीं रखेगा, कतई नहीं रखने वाला। ठीक है। लेकिन बोर्ड्स के मार्क्स पे विश्वास रखती कि नहीं कॉलेज? बोर्ड के मार्क्स पे। ठीक है बच्चों, क्यों रखती है? क्योंकि बोर्ड में तुम्हारी हुई थी इंडिपेंडेंट चेकिंग। क्या हुई थी? इंडिपेंडेंट चेकिंग हुई थी। मुझे बताओ, जो पेपर चेकर था, पेपर चेकर का और अनन्या का कोई भी ताल्लुकात था क्या? बताइए। पेपर चेकर का और अनन्या का कोई भी ताल्लुकात था? बिल्कुल ताल्लुकात नहीं थे, बराबर ना? दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। मानते हो ये चीज? मानते हो कि नहीं? दोनों एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट थे, बराबर ना? इसीलिए भले दोनों के दोनों रिजल्ट ही थे। क्या बोला मैंने? देखो, एक ये रिजल्ट था, एक ये रिजल्ट था प्रीलिम का, और एक ये रिजल्ट था बोर्ड का। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स थे, लेकिन भरोसा किसके ऊपर आया? कहना इसे, उस रिजल्ट के ऊपर भरोसा आया जहां पे इंडिपेंडेंट चेकिंग हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चों? इंडिपेंडेंट चेकिंग। इतना मानते हो सब लोग? कमेंट्स में लिख के भेजो मुझे वर्ड्स इंडिपेंडेंट चेकिंग, जल्दी कमेंट्स में लिख के बताइए इंडिपेंडेंट चेकिंग। कम ऑन फास्ट। आधा घंटा व्यतीत हो चुका है, पता ही नहीं चला भाई आधा घंटा कब चला गया। कमेंट्स में जल्दी इंडिपेंडेंट चेकिंग, बराबर ना? वेरी गुड। इंडिपेंडेंट चेकिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा रखा जाता है। ठीक है। मुझे बताओ, जो पेपर चेकर था, पेपर चेकर को कुछ भी फर्क पड़ रहा था कि उसके सामने आंसर शीट किसकी है? अनन्या की है कि श्रेयांश की है कि संतोष की है? उनके सामने बस क्या था? पेपर था, कागज का पेपर था। उनको चेक करना था, रिजल्ट देना था, चेक करना था, रिजल्ट देना था, चेक करना था, रिजल्ट देना था। मुझे बताओ, उनको फर्क पड़ रहा था पेपर किसका है? साक्षात। अभी मुझे बताओ, आज मुकेश अंबानी का जो बेटा है आकाश अंबानी, पता ना, वी बोथ शेयर द सेम नेम, आकाश अंबानी। मुझे बताइए बच्चों, आकाश अंबानी ने भी बोर्ड की एग्जाम लिखी होगी कि नहीं? बोलो। जरूर लिखी होगी, बराबर ना? मुझे बताओ, पेपर चेकर को फर्क पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, ये तो आकाश अंबानी का पेपर है यार, इसको ज्यादा मार्क्स देते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा भी होगा? बताओ, ऐसा उन्होंने सोचा भी होगा? बिल्कुल नहीं। फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। ठीक है। तो बच्चों, सेम कंसेप्ट में पता ही नहीं था तुम्हारा ऑडिट के साथ जो नाता है वो 10वीं से जुड़ चुका था, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था। अभी देखो ध्यान से, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन, पे केयरफुल अटेंशन टू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सबकी नजरें बोर्ड पे। हाँ बच्चों, दिख रही है? देखो, ऑडिट की डेफिनेशन पे ध्यान दो ना। ऑडिट क्या है? ऑडिट बच्चों इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या है बच्चों? अभी तुम लोग की डेफिनेशन मुझे बोलोगे, हाँ, इसके लिए पे अटेंशन। Audit is what? Audit is simply checking the financials, but checking the financials in an independent manner. It is independent examination of financial information, मतलब financial statements किसके? एंटिटी के, ऑफ एन एंटिटी। बच्चों, एंटिटी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कंपनी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज जो भी चाहे अपने फाइनेंशियल का ऑडिट करा सकता है। इनफैक्ट मेरे फाइनेंशियल, मेरे इंडिविजुअल, मेरे खुद के फाइनेंशियल जो बनते हैं उसका भी मैं ऑडिट करवा सकता हूँ। ठीक है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। सब लोगों को पता है सलमान खान को जो एनजीओ है बीइंग ह्यूमन, पता है बीइंग ह्यूमन? बोलो। सलमान खान का जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप क्या बोल रहा हूँ, एनजीओ है ना, बीइंग ह्यूमन। मुझे बताओ बच्चों, आज बीइंग ह्यूमन भी अपने फाइनेंशियल बनाता होगा कि नहीं? बीइंग ह्यूमन भी अपने फाइनेंशियल बनाता होगा। अब बच्चों, बीइंग ह्यूमन जब अपने फाइनेंशियल बनाएगा, व्हेन बीइंग ह्यूमन इज मेकिंग द फाइनेंशियल, और वो लेके जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। एग्जांपल लेते हैं, आज हमारे क्लास में जो विक्रम झा बैठे हैं, विक्रम बेटा बैठे हैं ना, एग्जांपल लेते हैं, विक्रम बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। ठीक है। और सलमान भाई विक्रम के पास आए और विक्रम को बोला, विक्रम मेरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट करो, ये बीइंग ह्यूमन कंपनी का ऑडिट करो।
मुझे बताओ विक्रम क्या बोलेगा, अरे सलमान भाई आप इतने भगवान जैसा काम कर रहे हो, इतने पुण्य का काम कर रहे हो, इतने एनजीओ का काम कर रहे हो, मैं आपके फाइनेंशियल में गलतियां भी रहेंगी तो भी जाने दूंगा। मुझे बताओ विक्रम के मुंह से ये शब्द निकलेंगे क्या? बोलो। आज क्योंकि, हाँ बताओ मुझे, आज क्योंकि सलमान खान इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो विल ही शो सिंपैथी टुवर्ड्स दैट? बोलो। अकाउंटिंग बराबर से नहीं हुई है तो विक्रम क्या लिखेगा? विक्रम क्या लिखेगा? विक्रम लिखने वाला है कि जहाँ पे ये देखो ये देखो ऐसे ऐसे फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बिक जाते हैं ना। यस सर, आई एम अ फैन ऑफ हिम। ये देखो भाई, फैन वैन से कुछ नहीं होता, याद रखना। हाँ, तो विक्रम को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे फाइनेंशियल अगर बराबर से नहीं बने तो लिखेगा फाइनेंशियल बराबर से नहीं बने। ठीक है, एंड वो लिखेगा कि भाई अगर फाइनेंशियल बराबर बने तो लिख देगा फाइनेंशियल बराबर बने। समझ में आया? फंडा क्लियर है? ओके, तो मुझे बताओ आज फर्क पड़ना चाहिए क्या? आज मुझे बताओ, रिलायंस रिलायंस इतना प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो उससे मुझे फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए। कुछ भी फर्क पड़ने वाला है मुझे उससे? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म, देख रहे हो, आज या तो छोटा मोटा स्टार्टअप हो या फिर बड़ा से बड़ा रिलायंस, मुझे बताओ हम कभी टस से मस होने वाले हैं क्या? फिर हम लोग कभी भी टस से मस होंगे बच्चों? बताओ। कभी भी हम लोग टच से मस नहीं होंगे। हम बेसिकली जैसे ऑडिट होना चाहिए वैसा ही ऑडिट हम लोग करेंगे। भले रिलायंस मुकेश अंबानी भी सामने खड़े हैं फिर भी हम हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को हम लोग कायम रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म। बराबर ना? लीगल फॉर्म मतलब क्या? भले आपकी कंपनी हो, भले पार्टनरशिप हो, मैं पता ना हम तीनों बच्चों की पार्टनरशिप थी, भव्या की, अनन्या की, अमृता की। ठीक है, भले बच्चों तुम एलएलपी हो, तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है, उसके बाद भले तुम सोल प्रोप्राइटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप हमें फाइनेंशियल लेके आओ, हम चेक करके बताएंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? ये चेकिंग हो क्यों रही है? व्हेन सच अ चेकिंग इज कंडक्टेड, ये एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग है बच्चों, एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। मुझे एक ओपिनियन बताना है कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं, बराबर बने हैं कि गलत बने हैं। और ये ओपिनियन बच्चों मैं कैसे देता हूँ? बाय वे ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। कैसे देता हूँ मैं? बाय वे ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। बोलो बच्चों, डेफिनेशन का एक एक वर्ड समझ में आया सब लोगों को? इज एवरीबडी क्लियर विद द डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन का मतलब? ऑडिट का तुम्हें कभी भी जीवन में, तुम्हें लाइफ टाइम, लाइफ टाइम देखो, हाँ, ऑडिट ही सबसे ज्यादा, ऑडिट और टैक्स ये दो चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट जीवन भर करता है। तो इन दैट केस बच्चों याद रखना ये जो चीज है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अभी तुम लोग बोलोगे, मेरे साथ में रिपीट करो, मेरे साथ में दिमाग में रिपीट करो, साथ साथ में थियरी सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, यस यस। सो सर, ऑडिटर गिविंग ओपिनियन इन द, विक्रम बेटा देखो, विक्रम का मैं मैसेज भेज रहा हूँ, विक्रम के मैसेज में गलती क्या है देखो, विक्रम के रिप्लाई में गलती बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, देखो। आज विक्रम ने बेटा है, सो सर ऑडिटर गिव ओपिनियन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ये मेन काम है। मुझे बताओ, ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन लिखते हैं? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन होती है, ठीक है। तो ऑडिटर गिविंग रिपोर्ट, ऑडिटर गिविंग ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट, एंड ये ओपिनियन होता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझे ना विक्रम बेटा? ठीक है, गलती समझ में आ गई? हाँ, गलती को ऑन द स्पॉट ही ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, हाँ बच्चों, अगला पॉइंट, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। अभी देखो स्क्रीन पे देखते रहना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट का मतलब समझा दिया। क्लाइंट और ऑडिटर, क्लाइंट और ऑडिटर, क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कोई भी ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ किसकी? ऑफ द एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, छोटी हो बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, में एलएल सोल प्रोप्राइटर हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं ओपिनियन दे पाऊँ, और वो ओपिनियन बच्चों कहाँ जाने वाली है? मेरे ऑडिट रिपोर्ट में जाने वाली है। समझ में आया? ऑडिट इज वेरी गुड, अनिल ने तो लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया। Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profited or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। ठीक है, अब मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं क्लास में किसी एक बच्चे से ये डेफिनेशन बुलवाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट का समय है, स्क्रीन पे देखो।
जो बच्चे ने सबसे कम रिप्लाई किया उसका आंसर आने वाला है, उसको ही क्वेश्चन जाने वाला है। तो 1 मिनट का समय दिमाग में डाल दीजिए, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए, ठीक है? गलत जाएगा तो चलेगा, क्लास में मेरे सामने जितनी गलती करोगे चलेगा, इंस्टीट्यूट के सामने भले तुम्हारा मई 22 का अटेम्प्ट है, नवंबर 22 का अटेम्प्ट है, इंस्टीट्यूट के सामने गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने करोगे, क्लास में करोगे, चलेगा। Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. हो गया बच्चों? पढ़ लिया? तुमने पढ़ लिया है तो मुझे कमेंट्स में यस बोल देना, डन सर। भव्य का हो गया, वेरी गुड। संतोष डन, अनन्या डन, विक्रम डन, श्रेयांश डन। ओके, कौन बच गया? अमृता बेटा डन, वेरी गुड। चलिए अमृता मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आंसर दीजिए। Yes, sir. बोलो। Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, when such an examination is done with a view to expressing the opinion. परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं तुम लोगों को एमसीक्यू वाइज टाइप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब वन वर्ड, ठीक है? मुझे आंसर चाहिए श्रेयांश से। श्रेयांश बेटा मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा कि क्लाइंट बनाएगा? तो क्लाइंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू विक्रम बेटा। विक्रम बेटा अनम्यूट कीजिए। मुझे बताओ जहाँ पे विक्रम, हाँ विक्रम है ना क्लास में? हाँ विक्रम बेटा मुझे बताओ, आज बेसिकली ऑडिट इज अ डैश एग्जामिनेशन, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बराबर ना? ठीक है। एंड मुझे अनन्या बेटा डेफिनेशन एक बार रिपीट किया करो। Sir, audit is an independent examination of financial statements of an entity, whether it is profit oriented or not. बस 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 भव्या कंटिन्यू करो, भव्या बेटा कंटिन्यू करो। Sir, audit is an independent examination of financial information of an entity, whether it is profit oriented or not, irrespective of size and its legal form. हाँ आगे आगे कंटिन्यू करो, खत्म नहीं हुआ When है। such examination conducted with a view to expressing an opinion thereon. परफेक्ट, बड़ा बढ़िया, सबके दिमाग में? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई इतना इजी है, इतना इजी है। अब यार इसमें तो यार कुछ नहीं होना चाहिए, इतना इजी जब चीजें आती हैं। ओके चलिए, अब मैं तुम्हें बच्चों चैप्टर नंबर 1 का एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या आता है, ठीक है? ये हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 का बच्चों इंडेक्स है, ये चैप्टर 1 का इंडेक्स है। बेसिकली जैसे जो बच्चे मेरे साथ ईआईएस में बैठे थे, मैंने तुम्हें बताया था हम लोग पूरा चार्ट वाइज जाएंगे, सिमिलरली इधर भी चार्ट वाइज ही जाने वाले हैं। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि चैप्टर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? हाँ तो हमने पहला चीज तो हमने पढ़ाओ पार कर लिया आज, ठीक है? मीनिंग ऑफ ऑडिट पार कर लिया, ठीक है? अभी बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑडिट होता है तो किसका ऑडिट होता है, तो किसका ऑडिट होता है? सर नहीं बेटा विक्रम, फुल कोर्स, फास्ट ट्रैक कुछ नहीं है, फुल कोर्स, ठीक है? फुल कोर्स है, 3 जनवरी से चालू होने वाला है। आज का पहला लेक्चर है, 3 जनवरी से चालू हो जाएगा बैलेंस। हाँ बच्चों किसका ऑडिट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, ठीक है? अब फाइनेंशियल का जो ऑडिट होता है, ठीक है, उस क्यों भाई क्यों सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल का ऑडिट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों इसके काफी एडवांटेजेस डिराइव होते हैं। 4-5 एडवांटेज तो मैंने तुम्हें शुरुआत में बता दिए थे ना, याद है ना? आज मुझे लोन मिलने में दिक्कत नहीं आती, गवर्नमेंट को अगर मुझे जाके ग्रांट मांगना है तो दिक्कत नहीं आती, इन्वेस्टर से जाके और पैसा और रेस करना है
बराबर ना। स्टार्टअप अरे स्टार्टअप करने जाओगे, स्टार्टअप में अगर एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टअप में तुम्हें फंडिंग चाहिए ना, तो जब तुम इन्वेस्टर के पास जाते हो तो तुम्हें ऑडिटर फाइनेंशियल दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज ऑडिट करवाने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे बच्चों कौन करता है, हु कंडक्ट्स द ऑडिट। ठीक है बच्चों, देखो आज क्लास में जितने बच्चे हैं सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऑडिट। ठीक है, लेकिन मेरी पूरी पूरी दिलो जान से तमन्ना है कि तुम लोग जल्दी क्लियर बन जाओ, ताकि तुम लोग भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट बन जाओ। ठीक है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद, ठीक है, अभी मुझे ध्यान से बताना, मुझे केयरफुल बताओ। आज मुझे बताओ, आज बच्चों, आज देखो मैं तो यार, ध्यान सुनना, मैं तो यार सीए बनने के बाद मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बराबर ना? तुम बच्चों को सीए बना रहा हूँ। आज मैंने ईवाई छोड़ा है ताकि तुम ईवाई में जा पाओ। ठीक है, पर मुझे बताओ, जब मैंने बच्चों सालों पहले जब पढ़ाना चालू किया तो क्या लाइन से बच्चे खड़े थे क्या? वाह आकाश सर पढ़ाएंगे, इनसे पढ़ेंगे। मुझे बताओ लाइन से बच्चे थे क्या? खड़े थे? नहीं ना, लाइन से तो बच्चे खड़े नहीं थे, बराबर ना। एक 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 बच्चे को पास कर करके फिर बच्चे आए, है कि नहीं? तो इन दैट केस बच्चों, नाउ पे केयरफुल अटेंशन, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तुम तुम्हारी सीए फॉर्म चालू करने वाले हो, तुम्हारे सामने के क्लाइंट्स खड़े रहेंगे? बताओ, सामने क्लाइंट्स खड़े रहेंगे क्या? बोलो, सारे के सारे बताइए। बस अरे दुकान खोल दी अभी, क्या अभी वाह, तो आप पूजा वूजा हो गई, अभी तो बस कल से पैसा छापना चालू करेंगे हम लोग, ऐसा होगा क्या? अरे कल के कल सब लोग आएंगे, पूरे मोहल्ला आ जाएगा, अरे मेरा रिटर्न फाइल करो, ये करो वो करो। ऐसा होने वाला है क्या? बताओ। पैसे, बस लोग बोलते हैं ना सीए बनने आता, पैसे की बारिश, पैसे की बारिश, मैंने तो आज तक नहीं देखी। ठीक है, मुझे बताओ ऐसा होने वाला है क्या बच्चों? नहीं, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ठीक है, ये वो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, पता है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि भाई 10वीं पास हो जाओ लाइफ सेट है, 12वीं पास हो जाओ लाइफ सेट है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लो लाइफ सेट है, सीए बन जाओ लाइफ सेट है, ठीक है, शादी कर लो लाइफ, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, सब सब अगला स्टेप बताने के लिए सब सब चलता है। ठीक है, तो इन दैट केस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीए बनने का लाइफ सच में सेट है। ओके, बट मुझे बताओ, जहाँ पे यार आज क्लाइंट आएगा क्या तुम्हारे पास? क्लाइंट कब आता है बच्चों? जब तुम पहले क्लाइंट को सर्विस अच्छी दोगे तब ना। आज बच्चों इतने, एक बच्चे से दो बच्चे, दो बच्चे से चार, चार से 16, 16 से 20, ठीक है, 20 से 200 बच्चे, जो आज ये कारवा बढ़ा है, इसके लिए क्यों बच्चों? आज कुछ तो क्वालिटी होगी ना टीचिंग में। ठीक है, बच्चों को अच्छा लगता है बराबर बात करना, मिलना, पता नहीं चलता है, देख लो 45 घंटे 50 मिनट कब चले गए। ठीक है, ये जो होता है ना कि भाई जहाँ पे क्लास में बैठने का पक्का मालूम है कि यहाँ बैठेंगे तो पक्का पास हो जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वालिटी होती है तब बच्चा आता है। वैसे ही बच्चों, आज सीए में, सीए की अगर तुम प्रैक्टिस चला रहे हो तो तुम्हें क्वालिटीज होनी चाहिए ना एक ऑडिटर की। कुछ ऑडिटर की क्वालिटीज होती हैं, बिना उन क्वालिटीज के मुझे बताओ तुम्हारे पास क्लाइंट्स आएंगे क्या? बताइए। तो चैप्टर नंबर 1 तुम्हें वो सारी क्वालिटीज बताएगा। ठीक है, कैसे वो सारी क्वालिटीज बताएगा, समझ में आया क्या? इज द सेकंड क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या देखने वाले हम लोग? क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर, समझ में आया क्वेश्चन क्यों डाला है? अंडरस्टूड ना क्वेश्चन क्यों डाला? ठीक है, फिर बच्चों हम देखेंगे कि भाई आज ऑडिट करना तो है, लेकिन कैसे करें, हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। तो याद रखना बच्चों, जीवन भर, जीवन भर, क्या बोला मैंने? जीवन भर। ठीक है, लाइफ टाइम कोई भी तुम्हें पूछता है, कोई भी तुम्हें पूछता है, अरे संतोष बेटा तुम ऑडिट कैसे करते हो, अरे श्रेयांश बेटा तुम ऑडिट कैसे करते हो, अगर कोई भी तुम्हें पूछेगा, तुम्हारे मुंह से एक ही आंसर निकलना चाहिए कि आई कंडक्ट माई ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बोला मैंने? देखो, ध्यान सुना केयरफुली, ये पे अटेंशन टू दिस। देखो आज इंस्टीट्यूट ने ना क्लियर कट फंडा रखा है। देखो, देखिए बच्चों, आज हमारा बेसिकली जो, किधर गया रे, हाँ, आज बच्चों हमारा क्लाइंट इधर है, क्लाइंट बनाने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर ना? और मैं क्या करने वाला हूँ? मैं उनका ऑडिटर हूँ, मैं इसको करने वाला हूँ। देखो, क्लाइंट क्या करने वाला है बच्चों? शब्दों पे गौर फरमाना। क्लाइंट विल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? क्लाइंट विल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। क्या प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करेंगे बच्चों? केक। क्लाइंट क्या प्रिपेयर प्रेजेंट करने वाला है? क्या बनाएगा और क्या प्रेजेंट करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना। ऑडिटर विल चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर है? और चेक करने के बाद भाई साहब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ, जहां पे ये बनाते वक्त कहने से इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा। क्लास में जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 दे दिया है,
मुझे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सुना है सब लोगों ने कि नहीं? बोलो। अकाउंटिंग में तुम्हारे कहीं ना कहीं तो आ चुका ना 11वीं से भाई। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 AS2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बच्चों ऑडिट करने के लिए आई विल यूज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। किसका इस्तेमाल करूंगा? इनको बुलाते हैं बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इनको बुलाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ठीक है। समझ में आया? इनको क्या बुलाएंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ठीक है। तो आज के बाद, और ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट किसने इशू किया बच्चों? हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो तुम्हारे तुम्हारे मुंह से तुम्हारे मुंह से हमेशा आंसर ये निकलना चाहिए कि भाई आई कंडक्ट माई ऑडिट in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. समझ में आया? बोलो, लिख के भेजो मुझे कमेंट्स में। ऑडिटर विल कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लिख के भेजो कमेंट्स में अभी, कम ऑन क्विक, कमेंट्स में लिख के भेजा जाए। ऑडिटर विल कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये अलग ही स्टैंडर्ड्स है। पूरा अपना सिलेबस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे फॉलो होता है, ठीक है। ऑडिटर, वेरी गुड, विक्रम का आ गया। ऑडिटर विल कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट, बराबर ना? वेरी गुड। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन बेटा, स्टैंडर्ड जोन ऑडिट नहीं है संतोष, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ठीक है। वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद बच्चों हमारे 2-3 इंसिडेंटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। देयर आर 2-3 इंसिडेंटल क्वेश्चन दैट विल सी, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होता है, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनको हम लोग और डिटेल में क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। बट आई होप एटलीस्ट तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि भाई हाउ एग्जैक्टली द चैप्टर विल प्रोसीड। ओके, ये चीज हम लोग देखेंगे एंड ऑटोमेटिकली बच्चों हमारा ऑलमोस्ट ये दिस चार्ट कवर्स योर 70-80% ऑफ द चैप्टर, ठीक है। जो पार्ट ए ऑफ द चैप्टर है, बेसिकली जो बेसिक्स ऑफ ऑडिट जिसको हम लोग बोलते हैं, that is getting covered by this chart. कोई डाउट्स? मैं आई जस्ट लाइक टू वेट फॉर 10 सेकंड्स एंड चेक कि किसी को कोई डाउट्स है बच्चों? कुछ दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये ऐसे कैसे होता है, क्या कैसे होता है? कोई डाउट्स आ रहा है एनीबॉडी? ठीक है, मैं तुम्हें भी नोट्स भी दिखा देता हूँ कि तुम्हारे पास नोट्स कौन से दिए जाएंगे तुम्हें। नाउ पे अटेंशन टू दिस, विच आर द नोट्स। हाँ, भव्य बोल रही है सर ग्रुप 1 की क्लासेस, बेटा ग्रुप 1 की क्लासेस भी होने वाली है चालू, ठीक है। आपसे एक बार हम लोग फोन पे कनेक्ट करते हैं ना, तब बताते हैं डेट वेट सब कुछ, ठीक है। हाँ, लेट मी शो यू द नोट्स बच्चों। देखो, ये है वापस तुम्हारे रिवीजन नोट, समरी वाले, देख रहे हो चार्ट वाइज, ठीक है। यहाँ पे सारे सारे चार्ट्स हैं, ठीक है। चार्ट्स है, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, दिख रहे हैं धोनी जी दिख रहे हैं तुम्हें। तो इन दैट केस ये क्या है, सारे के सारे चार्ट्स है। और बाय द वे, हाँ बुक, यस बेटा बुक तो मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी भाई, बुक भेजेंगे ना तुम्हें, ओके। तो इन दैट के बच्चों ये है क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। दीज आर द, ऐसे हमारे रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है, समरी वाले। द एंटायर सिलेबस गेट्स कवर्ड इन दीज नोट्स, ठीक है, एंटायर सिलेबस। और तुम्हें बच्चों मिलने वाले मेन नोट्स, मेन नोट्स में मिलेंगे। मेन नोट्स वापस कौन से होंगे? जैसे मेरे EISM में स्कैनर फॉर्मेट में थे, वैसे ही तुम्हें फुल फ्लेजेड मेन नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। आई जस्ट शो इट टू यू। हाँ, ये दिख रहा है बच्चों, कैन यू सी द नोट्स? ये देखो ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 39, उसके नीचे उसका आंसर। तो ये तुम्हारे बेसिकली ये फुल फ्लेजेड नोट्स है, चैप्टर वाइज तुम्हें वाले मिलेंगे, ठीक है। गॉट इट? ओके, क्लियर है नाउ। आई डोंट नो इफ यू गाइज, हमने आप लोगों के साथ वो शेयर किया है कि नहीं, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ये स्क्रीन पे ऊपर देख लो, मैं तुम लोगों को चैट में लिख के बता रहा हूँ डेट्स, ठीक है। 3 जनवरी से लेकर, क्या बोला मैंने, 3 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 14 फरवरी तक तुम्हारे 2 सब्जेक्ट चलेंगे, ऑडिट प्लस EISM, ठीक है। मैंने लिख दिया चैट के ऊपर, 3 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 2 सब्जेक्ट चलेंगे, ऑडिट और EISM। ये चलेंगे तुम्हारे ऑल्टरनेट डे बेसिस, ठीक है। तो 3 जनवरी को अगर EIS होगा तो 4th को ऑडिट होगा, तो ऑल्टरनेट डे बेसिस, ठीक है। रही बात उसके बाद, इसके बाद जो तुम्हारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बेसिकली फ्रॉम 15th ऑफ February, 15th या फिर 16th ऑफ February एज द केस में भी, वहां से लेकर तुम्हारी 1 महीने तक क्लास चलेगी, 14 मार्च तक तुम्हारी जो क्लास चलेगी, दैट विल बी ऑफ एडवांस अकाउंट्स, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स की क्लास चलेगी, ठीक है। एंड लास्ट बच्चों फ्रॉम 15th मार्च से लेकर समवेयर इन द रेंज ऑफ 10th अप्रैल से 12th अप्रैल, ठीक है, 10 से 12 अप्रैल तक तुम्हारी क्लास चलेगी FM की, ठीक है। क्लास का टाइमिंग फिक्स्ड है,
शाम को 6:30 बजे क्लास होगी। शाम को 6:30 से लेकर रात के 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास चलती है विद 15 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, टाइमिंग सबका, टाइमिंग क्लास का कांस्टेंट है 6:30 PM टू 9:30 PM। ग्रुप वन की जो क्लासेस हैं, हाँ, ग्रुप 1 की क्लासेस के 2 बैच चलते हैं। एक मॉर्निंग में बैच होती है 7 से 10 और दोपहर को बैच होती है 2 से 5। ठीक है, तो इन दैट केस ग्रुप 1 का टाइमिंग दिन वाला होता है, ग्रुप 2 का टाइमिंग शाम वाला होता है। ठीक है, सारी क्लासेस जूम के ऊपर कंडक्ट होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रेसर का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएंगी। सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग ऐप के ऊपर मिलता है। ठीक है, सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट होती है। तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा अटेंडेंस बहुत कम रहेगा तो तुम्हारे पेरेंट्स से डिस्कशन होगा। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द क्लासेस लाइव। ठीक है, हर चैप्टर के बाद, नाउ पे अटेंशन, हर चैप्टर के बाद तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा, राइटिंग वाला, जो चेक करके तुम्हें मिलेगा। ठीक है, हर 2 या 3 चैप्टर जब क्लब हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर हो जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा राइटिंग टेस्ट होगा, घर पे लिखना है, स्कैन करना है, पेपर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चेक करके पेपर मिलता है। एमसीक्यू के एग्जाम्स, एमसीक्यू टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर होती है, एप्लीकेशन के ऊपर। तो मैं जब बताऊंगा तो इन दैट केस इट इज अ टाइम बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं 15 एमसीक्यूज रहेंगे तो तुम्हें कुल मिला के कुछ 15 से 20 मिनट का समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज द टेस्ट एंड उसमें लीडर बोर्ड होता है। तो भव्य को पता चलेगा कि अनन्या को कितने मार्क्स आए, अनन्या विल अंडरस्टैंड विक्रम को कितने मार्क्स आए। तो बैच में जितने बच्चे होते हैं उनका बेसिकली, और भी बच्चे हैं, और 7-8 बच्चे हैं जो ऑलरेडी बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, 3 जनवरी को। ठीक है, सो इन दैट केस दिस इज हाउ द क्लास विल बी कंडक्टेड, ऑनलाइन लाइव। ठीक है, विद द रिकॉर्डिंग, विद द टेप। बिकॉज ध्यान सुना बच्चों, तुम्हें 3 ही चीजों की जरूरत है एग्जाम पास करने के लिए। एक है ऐसे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे ना इंटरेक्टिव क्लास में, वो। दूसरा तुम्हारा स्ट्रक्चर, मैंने तुम्हें बता दिया कि क्लास कब से कब तक होगी, क्या टाइम होगा। एंड ऊपर से 12 अप्रैल के बाद तुम्हें असाइन किए जाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मेनली साक्षी मैम होंगी जो तुम्हें असाइन की जाएंगी, और साक्षी मैम तुम्हारा डेली का टाइम टेबल बनाएंगे। अगर तुम मई के बच्चे हो, तो मई 22 के बच्चे हो, तो तुम्हारा डेली का टाइम टेबल बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स भाई, वो तो यूट्यूब पे होगा बेटा, वो तो दैट इज ऑन यूट्यूब। ठीक है, वो तुम्हारा मेंटरिंग करेंगे और तुम्हें बेसिकली टाइम टेबल बना के देंगे कि क्लासेस के बाद कैसे पढ़ना है। दैट इज द पॉइंट, क्योंकि आज आज हमें तुम्हारा साथ एग्जाम के दिन तक रखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस कोचिंग पढ़ा दी, तुम चाहो तुम खुद पढ़ाई करो, ऐसे नहीं होता है भाई। ओके, सीए के एग्जाम में हमें तुम्हारे एग्जाम के दिन तक साथ में रहना पड़ेगा, तो तुम्हें एग्जैक्टली बताएंगे कि कैसे कब पढ़ना है। ओके, और लास्ट पॉइंट इज द टेस्ट। ठीक है, ये 3 चीजें जब तुम्हारी होंगी, कोचिंग, प्लान और टेस्ट, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है बच्चों, इट इज ऑलमोस्ट 7:30। आज का क्लास समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स इन द टुडेस क्लास? समझ में आ गया? वी विल कनेक्ट विद यू, वी विल कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू गाइस इंडिविजुअली। ओके, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट 10 से 15 बच्चे होते हैं क्लास में। ऑलरेडी 7-8 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ले लिए। ठीक है, 7-8 रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं जो ऑलरेडी 3 जनवरी को बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस जिसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इन दैट केस जल्दी रजिस्टर कराओगे तो इन दैट केस डेफिनेटली विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू स्टार्ट। तो 3 जनवरी को हो ही रहा है बैच। ठीक है, जितना जल्दी तुम लोग रजिस्ट्रेशन लोगे उतने जल्दी तुम्हारा सिलेबस कवर होगा, मेरे साथ में, मेरे बाद में नहीं। ठीक है, यू हैव टू स्टडी अलोंग विद मी। ठीक है, और जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क अगले लेक्चर में चेक होगा। तो 3 जनवरी को जो होमवर्क दिया जाएगा वो ऑडिट की जो अगली क्लास होगी उसमें चेक होगा, रैंडमली एक जन का होमवर्क। ठीक है, तो और अगर वो होमवर्क नहीं किया तो मैं ऑन द स्पॉट क्लास के बाहर निकलता हूँ। तो अगर तुम्हें क्लास में बैठना है, यू हैव टू अर्न द क्लास, अर्न। यू कैन नॉट डायरेक्टली कम इन से, तुम्हें क्लास को अर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द होमवर्क एंड गेट योर सीट इन द क्लासरूम। ठीक है, ऐसे टाइम पास नहीं होता है, सीए का रिजल्ट ऐसे ऐसे लेके नहीं आते। आज मेरे जो बच्चे जिनको 70+ ऑडिट में आता है, आज विक्रम बेटा लॉ पास हुआ है। ठीक है, ये रिजल्ट इसकी वजह से आता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इफ यू आर स्टडिंग अलोंग विथ मी, नॉट आफ्टर मी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यस विक्रम, तुम्हारा जाहिर सी बात है, पर मैं जब तक पुश नहीं करूंगा तब तक तुम भी एफर्ट नहीं लोगे ना यार। ठीक है, समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन एनीबडी? संतोष, अनन्या, अमृता, विक्रम, भव्य, एनी क्वेश्चंस? Sorted? Okay. I hope to see you guys on the 3rd of January again. ठीक है, we'll connect with you individually and get to know from you. आप लोग कोई individual subject join करना चाहते हो, you can join for individual subject also. It is not the requirement कि you have to join for all subjects. ठीक है? Okay. चलो, ठीक है. Bye बच्चों, bye bye. Good night. It's 7:30. Have fun and happy new year in advance. Okay. नए साल में भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के और स्टेप नजदीक जाना है, तो ये साल अच्छे से मजे कर लो। अगले साल जबरदस्त मेहनत करनी है सो दैट वी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनोगे, एटलीस्ट एक लेवल स्टेप तक जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, बाय बाय, बाय बाय।